Okay, so the topic for today is selection of the optimum portfolio using Sharpe index model. So please write down the heading of today's topic. We are going to start with the selection of the optimum portfolio when there are a lot of securities which are given to you, and you will have to select the best securities. The securities only they would be selected which have an excess return to beta ratio above the cutoff rate. So taking up this problem, in this problem there are many securities which are denoted by PQRST UVW, and out of all these securities we will be identifying those securities which are having excess return to beta ratio. तो अब जो क्राइटेरिया रहेगा इस पूरे मॉडल के अंदर वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ER. ER का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो. दिस इज RS माइनस RF अपॉन बीटा S. तो पहला स्टेप इस पोर्टफोलियो डिटर्मिनेशन में रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ER, दैट इज RS का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, और RF का फुल फॉर्म होता है रिस्क फ्री रेट. तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी और रिस्क फ्री रेट का यूज करेंगे. इसको बोला जाता है एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी टू बीटा रेशियो. तो ये निकाला जाएगा और इनमें से केवल वो सिक्योरिटी सेलेक्ट होंगी जिनका वो रेशियो इट विल बी लाइंग अबव द कट ऑफ रेट. तो एक कट ऑफ रेट भी कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन उस कट ऑफ रेट का कैलकुलेशन से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. As I told you, there are so many securities which are given to you. अब इनमें से आपको केवल कुछ सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है, वो सिक्योरिटीज जो कट ऑफ रेट से ऊपर लाई करेंगी. राइट, ऑल द सिक्योरिटीज which will be lying above the कट ऑफ रेट. कट ऑफ रेट को भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएंगे आपको, बट रिमेंबर द कंसेप्ट, we will be selecting only those securities which will be lying above the cut off rate, and this probably is one of the best models where you not only determine the number of securities which are to be selected but also find out the proportion of each security in the portfolio. यहाँ पर आप न केवल वो सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ उनका प्रपोर्शन भी डिटरमिन करेंगे कि उन सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो के अंदर प्रपोर्शन कितना होगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओवर हियर सिक्योरिटीज आर गिवन. RS indicates the expected return of the security which is given in percentage. So this is representing return of the security. For example, P का return है 20%, Q का 18%, R का 12% and so on. Next, this is the beta of security denoted by beta और footnote में लिखा गया है S. Now beta is the sensitivity index of the security which indicates the volatility of the security or the movement of a security with respect to the share market. So beta, this concept has been explained to you in the earlier classes. Return of security, beta of security, and this symbol is indicating residual variance of the security, which is representing the unsystematic risk of the security. Right, there are two kinds of risk. One is systematic risk, which is market based risk, and another is unsystematic risk which is related to the company's risk or the internal risk. So standard deviation square ES represents the residual variance. This symbol is indicating variance, but it is the residual variance. In simple words, it indicates the unsystematic risk of the security, the risk which is other than the market risk. तो market risk के अलावा जो दूसरा कंपनी बेस्ड रिस्क या ऑर्गेनाइजेशन रिस्क है, that is represented by standard deviation square ES, which is also indicating the residual variance of the security. So we have this data. आगे इस क्वेश्चन के अंदर है you have to find out the optimum portfolio, मतलब इनमें से केवल कुछ सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करना है आपको, और एडिशनल डेटा है रिस्क फ्री रेट. Over here, remember the RF, the risk free rate is 8%, that is given to you, and the variance of market, variance मतलब standard deviation square
of m. So standard deviation square of m is 12%. तो आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है जो गिवन है हमें. नंबर 1 risk free rate, that is 8%. Another is standard deviation square, which is representing variance of market. So standard deviation square of m is 12%. So as I told you, we are going to calculate the excess return. ER का full form नोट कर लीजिएगा. Excess return to beta ratio. तो ER कैलकुलेट करेंगे हम, और वो कैसे आएगा? जो भी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है वो रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा है, एंड दैट विल बी डिवाइडेड अपॉन बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ER ऑफ ईच सिक्योरिटी, और उसके बाद हम उनको रैंक्स देंगे. तो आप पहले टेबल की हेडिंग डाल दीजिएगा. ये क्वेश्चन तो नोट कर लीजिएगा, और इसके ऊपर एक हेडिंग डालनी है आपको. जो फर्स्ट वर्कशीट बनाने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ रैंक्स यूजिंग ER रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ रैंक्स ऑफ ईच सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू ER रेशियो. सबसे पहले तो हम रैंक्स निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए RS माइनस RF कीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा बीटा S से. तो सबसे पहला टेबल हम बनाने जा रहे हैं RS माइनस RF. तो हम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी में से रिस्क फ्री रेट को माइनस करेंगे. जो भी आंसर आएगा उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा ऑफ सिक्योरिटी से डिवाइड कर देंगे. तो सबसे पहला जो RS है वो है 20, राइट. 20 में से रिस्क फ्री रेट 8 माइनस करिएगा और बताइए कितना आ रहा है? 12. तो रिस्क फ्री रेट को एक बार फिलहाल यहां लिख देते हैं. द रिस्क फ्री रेट वाज 8%. रिस्क फ्री रेट इस क्वेश्चन में 8% और वेरिएंस ऑफ मार्केट है 12%. ओके, तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं RS माइनस RF. सो दिस इज RS माइनस RF, क्योंकि वो आएगा फिर बीटा S से डिवाइड करेंगे हम. तो RS 20 माइनस 8 किया, क्या आ जाएगा? सबसे पहला 12. फिर 18 में से 8 माइनस किया, वो आ जाएगा आपके पास 10. उसके बाद 12 में से 8 माइनस किया 4. देन 16 माइनस 8 will give you 8. 14 में से 8 माइनस किया 6. 10 माइनस 8 that will be 2. 17 माइनस 8 ये हो जाएगा 9. और 15 में से 8 माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 7. तो RS माइनस RF निकाला, और अब उसके बाद RS माइनस RF को हम बीटा S से डिवाइड कर देंगे. तो 12 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? ये 12. नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला बीटा 2.5. तो 10 को 2.5 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 4. उसके बाद नेक्स्ट 4 को उसके सामने वाले बीटा 1.5 से डिवाइड कीजिएगा, 2.66 आ रहा होगा. तो विल राउंड इट ऑफ, ये बनेगा 2.67. नेक्स्ट 8 जो आया RS माइनस RF, उसको सामने वाले 1 से डिवाइड किया, तो 8/1 कितना हो गया? 8. 6 को उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 0.8 से डिवाइड किया हमने. 6 डिवाइडेड बाय 0.8 7.5. 2 डिवाइडेड बाय 1.2 1.67. 1.67. 66 आ रहा होगा, तो 1.67 राउंड ऑफ कर देंगे आप. 9 डिवाइडेड बाय 1.6 5.625. 5.625. And finally 7 divided by its corresponding beta 2 3.5. 3.5. तो ER आ गई हमारे पास. ये याद रखिएगा, दिस इज द एक्सेस रिटर्न रेशियो. ER रेशियो आ गया. अब उनके हिसाब से हम इनकी रैंक्स दे देंगे. तो रैंक्स कैलकुलेट कर रहे थे हम, ये इस वर्कशीट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ रैंक्स यूजिंग ER रेशियो, क्योंकि हमें ये हाईलाइट करना है और हमें सेग्रीगेट करनी है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज का रिटर्न ER रेशियो जो हायर वैल्यू है, क्योंकि जो भी हायर वैल्यूज होंगी केवल उन्हीं सिक्योरिटीज को सेलेक्ट किया जाएगा और उनका फिर प्रपोर्शन डिटरमिन किया जाएगा कि पोर्टफोलियो में उनका प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए. सो रैंक्स
Now if you see the highest value of ER ratio is 12, तो इसको तो मिलेगी रैंक फर्स्ट, राइट, फर्स्ट रैंक टॉप मोस्ट ER रेशियो है 12। उसके बाद देखा आपने नेक्स्ट इज S, 8 है इसका ER रेशियो, तो इसको मिलेगी रैंक सेकंड। नेक्स्ट 7.5 ये किसकी है, T की, तो अब इस T को मिलेगी रैंक 3। नेक्स्ट रैंक इज V, इसको मिलेगी रैंक 4 क्योंकि इसका वैल्यू है 5.625। उसके बाद सर्च करो और देखो किसकी रैंक हायर है, 4 ER रेशियो, इसको मिलेगी रैंक 5। नेक्स्ट W को मिलेगी रैंक 6। देन R, इसको मिलेगी रैंक 7 और लास्ट रैंक है U की 1.67, सबसे कम ER रेशियो है इस सिक्योरिटी U का, तो इसको मिलेगी रैंक 8, राइट। तो पहले नोट कीजिएगा यहां तक, ये आपने कैलकुलेट करी रैंक्स, और अब एक नया टेबल बनेगा, वो टेबल इस ऑर्डर में बनेगा जिस ऑर्डर में आपने रैंक्स दी हैं। सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेबल। इसके टॉप में लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन में RF दिया हुआ था हमें 8% और स्टैंडर्ड एमिशन स्क्वायर ऑफ M ये दिया हुआ था हमें 12%। रिस्क फ्री रेट वाज 8 and standard emission square of M was 12%. So kindly note it down, then we are going to proceed further. Okay, done up till here. Next, number 2. पहला फॉर्मूला था ER रेशियो का, उसके बेस्ड आपने रैंक्स दिए हैं, और हम इन रैंक्स देने के बाद इन सिक्योरिटीज का निकालेंगे आप कट ऑफ रेट। तो पहले तो लिखिएगा C, और C का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। कट ऑफ रेट उसको कैलकुलेट करेंगे हम, और उसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एमिशन स्क्वायर ऑफ M RS माइनस RF बीटा S standard deviation square ES whole divided by 1 plus standard deviation square of M then beta square S standard deviation square ES। तो एक बार नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ n, समेशन पूरे के ऊपर है, ये एक्चुअली लिखा जाता है i is equal to 1 till n सिक्योरिटीज। इसका मतलब होता है कि हमें ये साइमल्टेनियसली ऐड करते जाना है, इन सिंपल वर्ड्स हमें क्यूमुलेटिव करना है, और यही हमेशा i is equal to 1 to n यहां पर भी होगा। इसका मतलब हमें इन वैल्यूज का क्यूमुलेटिव करना है। तो इफ दिस कंफ्यूजेस यू, डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड मेक दिस फॉर्मूला अ लिटिल बिट सिंपल। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो पूरा समेशन का सिंबल है ये क्यूमुलेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हमें अपनी वैल्यूज को क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ n मतलब वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएंस ऑफ m, m मतलब मार्केट, समेशन पूरे के ऊपर है मतलब क्यूमुलेटिव है, RS माइनस RF। तो RS माइनस RF आपको याद होगा, ये थोड़ी देर पहले निकाला गया था, तो आप लोग इस कॉलम की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। इसको हमें बीटा s से मल्टीप्लाई करना है, पिछले फॉर्मूले में हमें बीटा s से डिवाइड करना था, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES जो है उससे हमें डिवाइड करना है इसे। उसके बाद ये पूरा टर्म डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस 1 एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें ऐड करना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ m। तो मतलब पहले ये पूरा सॉल्व होगा, और सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा हमें, और समेशन मतलब यहाँ पर फिर से क्यूमुलेटिव होगा किसका, बीटा स्क्वायर s का, होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से। तो अभी हम बीटा का भी स्क्वायर करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो समझिएगा। तो अब नेक्स्ट जो वर्कशीट बनने जा रही है उसका हेडिंग डालना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ, दिस इज वर्कशीट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट का कैलकुलेशन करेंगे हम, और उसमें डेटा तो यही यूज करना है। ओके, सो आफ्टर दिस फर्स्ट टेबल
we are going to prepare the calculation of cut off rate, और उनके लिए पहले अपनी सिक्योरिटीज को अरेंज कर दीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है? रैंक्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ये बताइएगा कि इन सभी सिक्योरिटीज की रैंक्स क्या क्या थी? टॉप मोस्ट सिक्योरिटी P, उसके बाद S, नेक्स्ट T, S के बाद T, V, Q, W, R, U और U। तो इन सभी सिक्योरिटीज को पहले इनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे आप। जो रैंक्स हमने निकाली थी फर्स्ट टिल 8 दी थी, उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ रेट्स। तो सिक्योरिटीज आ गई है हमारे पास ES, TV, Q, W, R, U। अब ये बताइए सबसे पहले P का रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना है? 20। S का 16। S का ही बताना है आपको। Yes sir। उसके बाद T का 14। T का है 14, V का 17, Q का 18, W का 15, R 12 और U 10। उसके बाद आपको बताना है इनका बीटा ऑफ दिस सिक्योरिटी S 1 16, S का भी 1 ही है। Yes sir। T 0.8, 0.8, 1.6, 1.6, 2.5, this is 0.8। 1.6 के बाद में 2.5, 2.5, 2, 2, 1.5, 1.5 1.2। और 1.2। तो बीटा अरेंज किया इनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग ही। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES बताइएगा। 40, 40, 35, then 35, 25, 25, 30, 30। yes sir, Next 35, 35, 35, again 35, 30, 30 15। और 15। तो हमने पहले स्टेप के अंदर तो सबका ER कैलकुलेट किया, और ER कैलकुलेट करने के बाद फिर उनका अरेंजमेंट किया उनकी रैंक्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप उनकी कट ऑफ रेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब कट ऑफ रेट्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इनका RS, बीटा S और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES तो अरेंज किया। नाउ सी द न्यूमरेटर पार्ट। इट इज RS माइनस RF बीटा S अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES। तो अब हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा RS माइनस RF। RS मतलब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, RF मतलब रिस्क फ्री रेट। इसको बीटा ऑफ सिक्योरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से। राइट? तो अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। पहला रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है 20 को माइनस कर देंगे। अब आप 20 में से 8 माइनस किया, RS में से RF कितना था हमारे पास क्वेश्चन में 8, तो 20 माइनस 8 किया, कितना हो जाएगा? 12 को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा से मल्टीप्लाई करना, 12 into 1 हो गया 12, और फिर 12 को स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES 40 से डिवाइड कीजिएगा। तो 12 अपॉन 40 किया, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 0.3। नेक्स्ट एक और पे ध्यान दीजिएगा, S का 16 में से 8 माइनस किया, क्या हो जाएगी वैल्यू? 8 को उसके बीटा 1 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज व्हाट द फार्मूला इज रिप्रेजेंटिंग RS माइनस RF। तो 16 में से 8 गया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही आ जाएगा। उसको 35 से डिवाइड करिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 0.229। 0.229। इसको 3 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा और उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। तो आगे भी कुछ आ रहा होगा, राउंडेड ऑफ अप टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। एक और 14 माइनस 8 किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो 6 into 0.8 हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 25। बताइए क्या आ जाएगी वैल्यू? 0.192। 0.192 के आगे कुछ आ रहा है? ओके 0.192। नेक्स्ट 17 में से रिस्क फ्री रेट 8 को माइनस किया, 17 माइनस 8 हो जाएगा 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करिए और जो आंसर है उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। बताइए कितना आ रहा है? 0.48। 0.48। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है
तो 0.48 वैल्यू आ रही है। आगे ध्यान दीजिएगा, 18 में से रिस्क फ्री रेट 8 को माइनस किया। हर एक रिटर्न में से रिस्क फ्री जो कांस्टेंट है सबके लिए सेम रहेगी। 8 माइनस करिएगा तो 18 में से 8 माइनस किया 10 को मल्टीप्लाई करिएगा 2.5 से 25 और उसको फिर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES जो रेसिडुअल वेरिएंस है उससे डिवाइड कर दीजिएगा और बताइए कितना आ रहा है। 0.71428 714 ले लेंगे, 0.714। नेक्स्ट 15 माइनस 8, 15 में से रिस्क फ्री रेट 8 माइनस किया 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 14 को डिवाइड करिए 35 से 0.4। नेक्स्ट 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करिएगा बीटा एस से, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड कर दो 30 से जो उसका रेसिडुअल वेरिएंस है और बताइए क्या आ रही है वैल्यू। दिस इज 0.2। फाइनली 10 में से रिस्क फ्री 8 माइनस किया तो 10 माइनस 8 विल बी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से और डिवाइड कर दीजिएगा 15 से, बताइए क्या आ रही है वैल्यूज। 0.16। क्या ये सारी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है? नोट कर लीजिएगा एक बार इसे, फिर आगे सिखाते हैं आपको। तो हमारे पास ये कॉलम हो गए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर। Then we are going to proceed further. यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये फिफ्थ कॉलम तक, क्योंकि हमने ये अभी केवल न्यूमरेटर यूज किया है RS माइनस RF multiplied by beta of each security and divided by standard deviation square ES, which is representing the residual variance. Now see, अब आप इसका कर देंगे cumulative. तो we are going to do cumulative of RS minus RF beta S upon standard deviation square ES. This is our column number 6. तो 0.3 का तो 0.3 रहा, 0.3 में 0.229 ऐड करिएगा और बताओ कितना आ रहा है। 0.3 plus 0.229 will give you 0.529. अब 0.529 में 0.192 को आप ऐड करिए और बताइए कितना आ रहा है। 192 plus 0.529 721। नेक्स्ट उसमें 0.48 को ऐड करिए। दिस इज व्हाट क्यूमुलेटिव रिप्रेजेंट्स। करंट वैल्यू में उसके पहले वाली वैल्यूज को ऐड अप करते हुए हमें आगे चलना है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1.201 कर सकते हैं इसी तरह से सभी का। करिए एक बार ये सारी क्यूमुलेटिव वैल्यूज, देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। 1.201 आया। नेक्स्ट उसमें 0.714 ऐड करिएगा, 915 0.4 ऐड कीजिएगा, इसमें 2.315 उसमें 0.2 ऐड कीजिएगा, 515 एंड देन ऐड 0.16 2.675। तो ये हमने इस कट ऑफ रेट का ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को आप स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ m कितना है हमारे पास 12। सो नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस सेवेंथ कॉलम, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ m। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर m को इस क्यूमुलेटिव वाले अमाउंट को जो सिक्स्थ कॉलम में आया था उससे मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट। कॉलम नंबर 7 विल बी रिप्रेजेंटिंग द न्यूमरेटर पार्ट। तो कीजिएगा एक बार 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई। जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट्स आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स कि यहां पर हमें इसको
क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस पूरे अमाउंट का, क्यूमुलेटिव ऑफ सिक्स्थ कॉलम। ये जो छठा कॉलम है इसकी वैल्यूज को क्यूमुलेटिव करना है हमें, और उसको हाथ के हाथ क्यूमुलेटिव किया है हमने, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन वैल्यूज के साथ। जो क्यूमुलेटिव अमाउंट आया है उसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर m से। तो 0.3 को करो एक बार 12 से मल्टीप्लाई और बताइए कितना आ रहा है? 3.6। देन 0.529 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 6.348। अब 0.721 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 0.721 into 12 और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 8.652। नेक्स्ट 1.201 into 12, 1.201 को उसके सामने वाले 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 412। नेक्स्ट 1.915, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22.98। नेक्स्ट 2.315, इसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2.315 into 12, 27.78। नेक्स्ट 2.515 को अब आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइए कितना आ रहा है? 30.18। नेक्स्ट 2.675, इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32.1। तो ये आ गया है हमारा न्यूमरेटर का पार्ट। कट ऑफ रेट के कैलकुलेशन के लिए न्यूमरेटर पार्ट ये हम निकाल चुके हैं, राइट? नोट करना है यहाँ तक, राइट? काइंडली नोट डाउन इन 2 minutes, although I will still give you much more time to note down the entire worksheet, लेकिन पहले एक बार ध्यान रखिएगा वैल्यूज कैसे आई हैं। पहले RS माइनस RF को बीटा S से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से, मतलब रेजिडुअल वेरिएंस से, और उसके बाद हाथ के हाथ यहाँ पर क्यूमुलेटिव किया हमने, और इस क्यूमुलेटिव अमाउंट को फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर m से। तो इस कॉलम को लिखने का स्पेस थोड़ा सा कम था, दिस वाज कॉलम नंबर 7, सो दिस वाज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ m जो आया था हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस क्यूमुलेटिव वाले पार्ट से। तो हमारे पास आ गया न्यूमरेटर पार्ट, दैट इज representing by this column number 7, standard deviation square of m into cumulative of the entire component। तो ये आ चुका है आपके पास। अब आगे ध्यान दो, हमें एक कॉलम बनाना है बीटा स्क्वायर s अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES का, हाथ के हाथ उसका क्यूमुलेटिव करना है, राइट? सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वन मोर कॉलम, और वो कॉलम किसका है? बीटा स्क्वायर s डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES, और उसके बाद उसी अमाउंट का क्यूमुलेटिव कर दीजिएगा बीटा स्क्वायर s का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES का। कैसे करेंगे? पहला बीटा है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उस 1 को सामने वाले रेजिडुअल वेरिएंस 40 से डिवाइड करो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से डिवाइड करना है। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं करना है आपको। बीटा स्क्वायर s ये चाहिए हमें, बीटा स्क्वायर s मतलब जो कंपनी का बीटा है उसका स्क्वायर करिएगा, जो आंसर आए उसको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से डिवाइड कर देना। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, करो 1/40, कितना आ रहा है ये? 0.025। एक और देखिएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 को इसके सामने वाले 35 से डिवाइड करिएगा, बीटा का स्क्वायर करना है और उसको सामने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से डिवाइड कर देना है। 0.02857। तो 0.0286 ले लेते हैं, 57 है, we'll take it up till 0.0286, राउंड ऑफ कर दिया, वैल्यू आ रही थी 0.02857, तो आप लोग इसको 3 या 4 डेसिमल तक रख सकते हैं, 0.0286 आ गया। एक और देखिएगा, फिर खुद करना। थर्ड सिक्योरिटी का बीटा है 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 0.64 को सामने वाले 25 से डिवाइड कर दीजिए और बताइए क्या आ रहा है? 0.0256।
0.0256 ऐसे निकाल सकते हैं सभी का? निकालिए एक बार, फिर आगे सिखाते हैं आपको। हरिए किया है कैलकुलेट? ओके, बताइए नेक्स्ट। फोर्थ सिक्योरिटी का बीटा कितना है? 1.6 करो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 और 2.56 को उसके सामने वाले 30 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 0.0853 0.0853। नेक्स्ट वैल्यू 2.5 का स्क्वायर वो हो गया होगा 6.25 अपॉन 35 0.1786 1786। सिमिलरली नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 35 0.11428 तो 0.1143 ले लेंगे, उससे ज्यादा की तो जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट 1.5 का स्क्वायर किया 2.25 डिवाइडेड बाय 30, क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.075 प्लस 1.2 का स्क्वायर 1.44, उसको डिवाइड कर दिया उसके सामने वाले 15 से 0.096 और हाथ क्या देता है? क्यूमुलेटिव कर लीजिएगा। बताइए 0.025 तो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट 0.0286 ऐड किया 0.05536 0.05536 चेक करिएगा एक बार वैल्यूज को। 0.025 प्लस 0.0286 0.0536। ओके, नेक्स्ट उसके बाद उसमें अब ऐड करते जाइए 0.0256 ऐड ऑन किया 0.0536 प्लस 0.0256 792 उसमें ऐड करो 0.0853 प्लस 0.0853 1645 प्लस 0.1786 बी क्विक प्लस 0.1786 इस अमाउंट को ऐड करिएगा 3431 इसमें ऐड करिए 0.1143 0.4574 4574 प्लस 0.075 0.5324 5324 में ऐड करिए 0.096 प्लस 0.096 0.6284 6284। तो अभी हमने बीटा स्क्वायर एस निकाला डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एस, हाथ के हाथ इसका क्यूमुलेटिव किया। अब क्या करना है आपको? इस क्यूमुलेटिव अमाउंट में स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एम को मल्टीप्लाई करना, मतलब 12। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एम कितना था? 12 और साइमल्टेनियसली उसमें 1 ऐड कर देना, राइट? क्या करना है आपको? इनमें ऐड करना है और उसके बाद सीधा पहले मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एम से और उसके बाद उसमें सीधा 1 ऐड कर देना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ये जो अमाउंट आया है इसके साथ ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ m मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना और 1 ऐड कर देना। तो ये स्टेप एक साथ होगा और इसका हेडिंग है 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर m बीटा स्क्वायर s बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर es। तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। 0.025 है ये क्यूमुलेटिव अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है मल्टीप्लाई करो इसको 12 से और जो आंसर है उसमें 1 ऐड कर दो और बताइए क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू? 1.3। क्लियर स्क्रीन करके अब अगला स्टेप 0.0536
इंटू 12 और जो आंसर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए 1.6432 1.6432 नेक्स्ट 0.0792 इंटू 12 प्लस 1 1.9504 1.9504 नेक्स्ट 0.1645 0.1645 को 12 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए और बताइए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.974 2.974 नेक्स्ट 0.3431 इंटू 12 और जो आंसर आए उसमें 1 प्लस कर दीजिए 5.1172 5.117 नेक्स्ट 0.4574 इसको मल्टीप्लाई करो 12 से और उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा 0.4574 इंटू 12 जो कि वेरिएंस ऑफ मार्केट है मल्टीप्लाई करना है हमें और उसमें 1 ऐड करना है बताइए क्या आ रही है वैल्यू 6.488 6.488 नेक्स्ट 0.5324 इंटू 488 एक और 8 है तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा 6.489 हो जाएगा वो 0.5324 इंटू 12 प्लस 1 0.5324 इंटू 12 प्लस 1 7385 7.3888 आगे भी कुछ है 888 ओके 0.6284 इंटू 12 प्लस 1 करना है हमें 0.6284 इसको 12 वेरिएंस ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई करना और प्लस 1 कर दीजिएगा बताइए क्या आ रहा है 8.5408 8.541 हो जाएगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया और न्यूमरेटर भी आ गया अब क्या करेंगे हम इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कॉलम कॉलम नंबर 11 और इसमें क्या कर रहे हैं हम कट ऑफ रेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं सी का वो कैसे आ रही है जो हमारा कॉलम नंबर 7 था ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था दिस वाज रिप्रेजेंटिंग 7 इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 10 7 नंबर का कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा था न्यूमरेटर पार्ट को जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट था इस कट ऑफ रेट का और जो 10th नंबर का कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को तो अब इस न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से तभी कट ऑफ रेट आएगी तो अब करिएगा सबसे पहले 3.6 को 1.3 से डिवाइड 3.6 डिवाइडेड बाय 1.3 और बताइए क्या वैल्यू आ रही है 2.769 ऐसे एक और देखिएगा जो नेक्स्ट s का है न्यूमरेटर पार्ट 6.348 इसको डिवाइड करो 1.6432 से 6.348 डिवाइडेड बाय 1.6432 इससे डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है 3.863 सिमिलरली नेक्स्ट है 0.721 इसको डिवाइड करो 1.9504 से 0.721 नहीं 8.652 जो 7th नंबर का कॉलम है उसकी थर्ड वैल्यू है 8.652 इसको डिवाइड करो 1.9504 से 8.652 लुक एट द बोर्ड इसको डिवाइड करना है 1.9504 से 4.436 क्या ऐसे सभी 7th कॉलम की वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं 10th कॉलम की वैल्यू से करिए एक बार फिर चेक करते हैं आपके आंसर्स को सारी वैल्यूज को कीजिएगा देन वी आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी वैल्यू 4.436 उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपकी वैल्यूज 14.412 डिवाइडेड बाय 2.974 14.412 divided by 2.974 8.8
हाँ गलत हो गया 4.846 क्योंकि 14 को लगभग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 तो आ ही नहीं सकता। 4.846 9 था तो राउंड। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करना है राइट। अब तो डायरेक्टली वैल्यूज बताते जाइएगा। जो हमारे पास 22.98 आया है इसको डिवाइड किया 5.117 से। 22.98 डिवाइडेड बाय 5.117 4.4909 09 तो 4.491 हो जाएगा। निकालिए बची हुई तीनों वैल्यूज भी और फिर साथ साथ इस वर्कशीट को नोट भी करते जाइएगा। 27.78 डिवाइडेड बाय 6.489। 27.78 को डिवाइड करना है 6.489 से। 4.281 4.281। नेक्स्ट 30.18 डिवाइडेड बाय 7.388। कॉलम नंबर 7 का न्यूमरेटर है 30.18, इसको डिवाइड करना है 7.388 से। कीजिए इसको डिवाइड और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। 4.085 और लास्ट 32.1 डिवाइडेड बाय 8.541। 32.1 डिवाइडेड बाय 8.541 3.758 3.758। Now why do we calculate this cutoff rate? क्योंकि अब इसके अंदर से आप सेलेक्ट करेंगे हाईएस्ट कटऑफ रेट। तो हाईएस्ट कटऑफ रेट कौन सी है हमारे पास 4.846। तो अब 4.846 कौन सी सिक्योरिटी की आ रही थी V की। 4.846 को देखा हमने और ये आ रही थी V में, तो इसका मतलब जो इस हाईएस्ट कटऑफ रेट तक सिक्योरिटीज हैं और जो इसके ऊपर हैं वो सारी तो सेलेक्ट हो जाएंगी पोर्टफोलियो के अंदर आने के लिए। बाकी सारी सिक्योरिटीज अब यहां पर रिजेक्ट हो जाएंगी। सो वी आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट दी सिक्योरिटीज। एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि जो सभी सिक्योरिटीज फाइनल में पहुंच चुकी हैं पोर्टफोलियो में वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई। और वो कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट हो रही है TSTV। ये 4 सिक्योरिटीज अब पोर्टफोलियो में आ चुकी हैं। इस कट ऑफ रेट जो हाईएस्ट थी मैक्सिमम कट ऑफ रेट के नीचे जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी उन सबको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो नोट कीजिएगा यहां तक। ये पूरी एक्सरसाइज करने का बेसिक पर्पस था टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट कट ऑफ रेट। और एक बार जो हाईएस्ट कट ऑफ रेट आ जाएगी उसके ऊपर की जितनी सिक्योरिटीज हैं वो सारे तो सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके नीचे की जितनी सिक्योरिटीज हैं वो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। सो काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर दिस एंटायर वर्कशीट, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन ईच सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज तो हमारे पास ये 4 आ गई हैं। अब इन चारों सिक्योरिटीज में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये अब आगे पता लगेगा, लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिएगा यहां तक और कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप। Kindly note down all the values up till here, and if there is any problem, then you can ask. Clear है? नोट हो चुका है यहाँ तक सभी का? Okay. Next part is calculation of Z. तो एक और फॉर्मूला नोट करना है अब आपको। ZS से डिनोट करना है जिससे पता लगेगा हमें रिलेटिव proportion of investment to be made in each security, और उसके बाद आएगा exact proportion of investment to be made in each security। तो ये कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला है बीटा S अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES RS माइनस RF अपॉन बीटा S माइनस C max। C max मतलब जो मैक्सिमम कट ऑफ रेट थी C max। ZS it is representing the relative proportion of investment to be made in each security। कैसे आएगा? बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी को डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ES से। एक बार वो आ जाए तो फिर जो RS माइनस RF अपॉन बीटा S था, एनीबॉडी रिमेंबर्स कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? ऊपर वाला फॉर्मूला देखिएगा RS माइनस RF अपॉन बीटा S सेम ER को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर तो हम सीधे ER की वैल्यू ले लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे C max।
कट ऑफ रेट मैक्सिमम याद रखिएगा वो 4.846 है। ओवर हियर सी मैक्स इज 4.846। ये वैल्यू याद रखनी है आपको ताकि आगे चलकर कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा, z ऑफ ईच सिक्योरिटी मतलब रिलेटिव इन प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन ईच सिक्योरिटी इज बीटा एस अपॉन रेसिडुअल वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ईएस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आरएस माइनस आरएफ अपॉन बीटा एस। इसको आप ईआर भी लिख सकते हैं, एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो माइनस कट ऑफ रेट मैक्सिमम। जो मैक्सिमम कट ऑफ रेट थी उसको हमें माइनस करना है। तो अब ये नीचे की सारी सिक्योरिटीज को इरेज कर रहे हैं in order to determine the proportion of each security। ये सारी सिक्योरिटीज रिजेक्ट हो जाएंगी, केवल इनमें ये चार सिक्योरिटीज टॉप सिक्योरिटीज जो कट ऑफ रेट मैक्सिमम कट ऑफ रेट तक उसके ऊपर लाई करनी है वो सेलेक्ट होती है, बाकी सारी वैल्यूज को आपको रिजेक्ट कर देना है। Okay, so our next statement will be third worksheet is calculation of ZS. Right, so now this problem is just about to be completed. हमारे पास ये चार सिक्योरिटी सेलेक्ट हुई हैं, चारों सिक्योरिटीज के रिटर्न है हमारे पास आरएस, बीटा एस और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ईएस। तो इस फॉर्मेट को एक बार नोट कर लीजिएगा फिर से। We have just these four securities and now we are going to find out the proportion of investment to be made in each security. तो आरएस, बीटा एस, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ईएस। अब एक कॉलम तो ये बनेगा सीधा RS माइनस RF अपॉन बीटा एस। वो आप लोग अपना ऊपर वाला वर्कशीट देखकर भी बता सकते हैं कि RS माइनस RF अपॉन बीटा एस ये हर सिक्योरिटी का कितना था। फर्स्ट P का RS था 20, राइट, RF था 8, तो 20 माइनस 8 पहले किया था हमने 12 को उसके सामने वाले बीटा से डिवाइड किया। तो इसका ER देखो एक बार, आपके थे पुराने टेबल के अंदर P का RS माइनस RF बीटा एस कितना था 12। S का सर्च करो, 16 में से 8 गया, 8 रह गया, डिवाइडेड बाय 1 किया 8 ही आ गया। नेक्स्ट 14 में से 8 माइनस किया 6 को 0.8 से डिवाइड किया हमने, क्या आ रही है वैल्यू 1.6, काफी कम हो गया है। 14 में से 8 माइनस किया हमने 6 को डिवाइड किया 0.8 से 7.5। आप सीधे अपना टेबल देख सकते हो, टेबल बनाया है आप लोगों ने पहला। नेक्स्ट 17 में से 8 माइनस किया 9 को डिवाइड किया 1.6 से, तो v की वैल्यू कितनी थी इसके अंदर 5.625 या 6.25 ओके। तो RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा एस ये ऑलरेडी आप सीधे पिक कर सकते थे क्योंकि हमने निकाला हुआ है फर्स्ट टेबल के अंदर। तो कहीं वापस कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक कर दे, जैसे सम ऑफ यू आर डूइंग इट, तो आप लोगों को सीधा ही अपनी वैल्यूज को ER वाले टेबल में से पुट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में जो ये कंपोनेंट आ रहा है RS माइनस RF अपॉन बीटा एस, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, जिसके लिए हमने फर्स्ट वर्कशीट बनाई थी। तो वो वैल्यूज हम सीधी ले सकते हैं। अब इनमें से हमें Cmax मतलब कट ऑफ रेट मैक्सिमम माइनस करनी है, तो एक और टेबल बनेगा, एक और कॉलम बनेगा। RS माइनस RF तो था ही हमारे पास, बीटा एस में से माइनस कर रहे हैं कट ऑफ रेट मैक्सिमम। बताइए क्या वैल्यूज आ रही हैं 12 माइनस 4.846, 12 माइनस 7.154, 8 माइनस 4.846 3.154, 7.5 माइनस 4.846 2.654, 5.625 माइनस 4.846
चेक करिएगा 0.779 कितना 0.779 5.625 माइनस 4.846 ये आ रहा है 0.779 ये आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा एस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ई एस से, तो एक कॉलम बनेगा छोटा सा बीटा एस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ई एस। ये कैसे बनेगा? पहला बीटा है 1 को डिवाइड करो 40 से 0.025 अब इस 1 को डिवाइड करिए 30 से 0.0333 नेक्स्ट 0.8 डिवाइडेड बाय 25 0.032 और 1.6 डिवाइडेड बाय 30 1.6 को डिवाइड किया 30 से 0.0533 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कॉलम नंबर बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ईएस इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर एस माइनस आर एफ बीटा एस माइनस सी मैक्स से। तो इस कॉलम नंबर this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 5 6 7 और 8th कॉलम जो आएगा वो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो इस पूरे को या तो लिख दीजिएगा, नहीं तो सिंपली आप इसको नंबर 8 ZS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सिंपली डिनोट दिस बाय Z ऑफ ईच सिक्योरिटी। कैसे आएगा ZS? 6 into 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 जो कॉलम था करो 7.154 into 0.025 7.154 into 0.025 कितना आ रहा है? 0.17885 0.1789 हो जाएगा। नेक्स्ट 3.154 into 0.0333 इसको कीजिएगा एक बार 3.154 into 0.0333 0.1050 1050 के आगे कुछ है 2 तो 1052 हो जाएगा। नेक्स्ट 2.654 into 0.032 2.654 into 0.032 0.0849 0.0849 और लास्ट 0.779 into 0.0533 0.041287 0.041 287 तो 29 हो जाएगा। ZS आया। अब आपको इन चारों वैल्यू को एक बार टोटल कर लेना है, उससे हमें पता लगेगा समेशन ऑफ ZS। इन सारी वैल्यूज का चारों का टोटल कीजिएगा और बताइए समेशन ZS कितना आ रहा है। टोटल ऑफ ऑल दी प्रोपोर्शनेट वैल्यूज 0.1789 0.1052 0.0849 and 0.4129 plus 0.0902 plus 0.0849 plus 0.04129 0.3953 ओके ऑलमोस्ट करेक्ट 0.3953। अब क्या करेंगे हम, ये हमने समेशन सेट तो कर लिया। हाउ डू वी गेट द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन ईच सिक्योरिटी? उसके लिए हर वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा टोटल से। तो करिए अब सबसे पहले 0.1789 डिवाइडेड बाय 0.3953 और बताइए वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। Proportion of investment, percentage of investment to be made in each security. 0.1789 divided by 0.3953. 0.45256. 0.45256. 0.45256.
तो 26 हो जाएगा। दैट मीन्स 4526 का मतलब होता है कि आप T सिक्योरिटी के अंदर 45.26% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 0.0902 अपॉन 0.3953 कीजिएगा, फिर 0.0849 अपॉन 0.3953 एंड 0.04129 अपॉन 0.3953। इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करिएगा, मतलब हर वैल्यू को जो ZS की है उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा। बताइए कितना आ रहा है नेक्स्ट? 0.2281 2281 818 है तो 812 82 हो हो जाएगा। जाएगा 2282। नेक्स्ट 0.0849 अपॉन 0.3953 2148 2148 और लास्ट 0.04129 अपॉन 0.3953 1045। इसका मतलब T सिक्योरिटी में आप 21.48% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और B के अंदर आप 10.45% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस मॉडल की हेल्प से तो ये पता लग गया कि ये 4 सिक्योरिटी सेलेक्ट होंगी और इन चारों सिक्योरिटीज में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। 45.26% का मतलब है कि इफ यू हैव एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीस तो उसका 45% दैट मींस 45,260 आपको P सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। S का 22.82% है, मतलब S के अंदर आपको 22,820 रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली T का 21.48 है तो T में 21,480 कर सकते हैं और B में 10.45% का मतलब है 1 लाख अगर अमाउंट है आपके पास तो उसका 10,450 कर सकते हैं। तो ये कैसे निकाला हमने? पहले इस फॉर्मूले से ZS रिलेटिव प्रोपोर्शन निकाल लिया हमने, उसका टोटल किया और फिर हर वैल्यू को उस टोटल से डिवाइड करते ही हमारे पास आ गया कि हर सिक्योरिटी में एग्जैक्ट कितना कितना प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। Right, so this is the selection of the optimum portfolio using Sharpe index model. नोट कर लीजिएगा इसको and most importantly कि हर सिक्योरिटी में हमें कितना कितना proportion करना है इन्वेस्टमेंट का।